a tribute to entrepreneurs. I'm trying to pass a message to society that was respect people who generate wealth. We should not be feeling jealous of people who generate wealth for others also. This is Akshay keeps praising this gentleman. His name is Mr. Pawan. He says this gentleman has been there with the group for 20 plus years. Obviously, Mr. Pawan has been there for 20. This is, I believe, the long service award. With this group, obviously, Akshay is taking care of it, and Mr. Pawan is behaving like an intrapreneur. He is letting the organization grow. God bless. We need such employees. I know many of them are listening to this particular session. This is the family that depends on Sridevi Tool Engineers. So you can see the difference people are making. One organization shuts down, how many people go down the drain? This is what the wonderful work Sridevi Tool Engineers are doing. A tribute to Mr. Kalyanpur Senior. And of course, now Akshay is slowly stepping in with his wife. His wife is one of the best, Samish sir. She's now doing social service. She's teaching BMC kids in 7th standard. Wow, very nice. Amazing lady, right? I think we need to salute her also. Amazing lady who is a finance MBA, but now decides to do something for society, teaching 6th, 7th, and 8th BMC students, right? So municipality, she goes and teaches them, and she gets satisfaction, right? She gets satisfaction. Having this, I'm starting on a lighter note. Always, I crack a joke, slightly longer joke. So it's a joke about simplicity. When a software engineer is looking at a farmer who is sleeping in a cart and saying that the cart is moving. So he's asking the farmer, "Ki boss, how would you know that the cart is moving? You may sleep for a long time and the bulls may not move." Then the poor farmer says, "Nothing. I've tied a bell around the necks of the bull. So when they stop moving, the bell will stop ringing." There's a smart urban engineer says, "What if the bull stops and then keeps shaking its neck? You will feel the bull is moving, but then you will hear the sound, but the bull is not moving." So smart guy, no? The farmer quickly says, I love this slide, my bull does not work from home. So it's an indication that he's trying to say that, when you say work from home, we know what happens, right? I think we have got to learn a lot from rural India about values that they propagate, the simplicity with they lead life, the simplicity which they face challenges. I think learning from failures is something society has not taught. We tend to learn from somebody's success, but how do you learn from somebody's failures? We already lost Sushantji. I got Mujibji just the next day to speak about his failure. And he said that I have a lump in my throat when I spoke how I lost my job. And now you need to come back from that particular thing. Very bad news, very, very bad news from UK. But then this is a country which is a developed economy. They have not been really facing any troubles. They have not been facing any troubles. So obviously they are down the drain. But we can't let that happen to India, at least not the MSME sector. We can't let that happen. So I started this entire journey with you all asking this simple question. And today the theme is going to be repeated not by me, but by my respected colleague, Professor Samish Dalal. So I started this theme 60 days back. Times have changed, so should we. Have we changed? Have we not changed? Right? Have we changed? Have we not changed? Right? If not, it is high time you change. So every time we keep talking about COVID, it's a hotspot. Even today I heard somebody saying that, oh, Mumbai is getting into a hotspot. I agree, it's circle of concern. We should use sanitizer, we should use a mask, we should do social distancing. But I don't think you can keep saying that forever. I told you last time also, I'd see this going for at least 6 to 7 months. And that's exactly where we get into what is called as the circle of action. Can we take an action about it? Can we get this opportunity? Respected Samish sir is going to start, but before I start that entire thing, I want to show you all a simple video. I love this guy. He's doing tremendous work, right? So I've now started tracking him. So here is one simple video, and then I hand it over to my brother, Professor Samish Dalal, who's going to inspire all of you all. Boycott China कहने में आसान है, लेकिन practically alternatives क्या है? जब तक government China से So here we go. Are you recording? Yes, sir. It's recording. No, it's not recording.
It is recording, sir. It is recording? Yes. Okay. Sure na, Vinayak? Yeah, now it started recording. It's okay. Chalo. No problem. बॉयकॉट चाइना कहने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। अल्टरनेटिव्स क्या है? जब तक गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट्स कैंसिल नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं? क्या आप भी ये सोच रहे हैं? Then this video is for you, because today we want to tell you 3 stories that are happening right now. 3 stories that are making India self-reliant, आत्मनिर्भर भारत. And in the next 3 minutes, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं. इस वीडियो के लिए हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत फैक्ट चेक किया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. The whole world is against China. But why? Let me tell you. चाइना ने इस क्राइसिस सिचुएशन में भी पूरे वर्ल्ड में सब स्टैंडर्ड और फॉल्टी टेस्ट किट्स भेजे और उससे प्रॉफिट कमाया. If it was any other country, they would have been extra careful to ensure that their image improves. बट चाइना को क्या फर्क पड़ता है? I'll give you an example. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. इस मेडिसिन का नाम तो आपने सुना होगा. ये ड्रग मलेरिया के अगेंस्ट यूज होता है और कोविड-19 के अगेंस्ट यूजफुल हो सकता है. इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ड्रग एंड वी एक्सपोर्टेड 50 मिलियन pills to the US. 50 million. That's huge. But the raw materials for this come from China. And during the coronavirus pandemic, China suddenly raised the prices. That's why now India wants to build a complete supply chain in India so that we are not nirbhar on China. चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है. 5 में से एक चीज चाइना में बनती है. चाइना में मैन्युफैक्चर करना इतना सस्ता है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं. राइट? रॉन्ग. क्योंकि आपको पता है इस सिचुएशन में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक सवाल पूछा है, हम क्या कर सकते हैं? नाउ लेट मी टेल यू सम रियल स्टोरीज. फैक्ट नंबर 1, पिछले 2 महीनों में 10,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होगी. कैसे? एक सवाल से हम क्या कर सकते हैं? The textile industry had to close down because of coronavirus. But even during these tough times, they found an opportunity. फैक्ट्रीज कंप्लीटली बंद रखने से अच्छा है पीपी किट्स बनाकर. एक प्राइवेट कंपनी ने स्टार्ट किया, फिर एक और. And today, India makes 4.5 lakh PPE kits every single day. In these 2 months, India became the second largest PPE manufacturer in the world. This new industry will be worth $60 billion by 2025. I mean, wow. All of this happened in less than 60 days. लगता है impossible है, लेकिन सच. फैक्ट नंबर 2. This is the Mahua flower from Chhattisgarh. इससे देसी दारू बनती है. इस फ्लावर का इस क्राइसिस से क्या लेना देना? The tribal women in Chhattisgarh use this flower to brew alcohol, which forms the base for hand sanitizers. When India was scrambling to get enough supplies of hand sanitizers, these women did not give up. They asked, हम क्या कर सकते हैं? I mean, just look at their creativity. They understood the real meaning of vocal for local. और एक आदिवासी सॉल्यूशन ने वहाँ की लोगों की जान बचाई. ये लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन सच. फैक्ट नंबर 3, 1000 कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर इंडिया में मूव करने की बात कर रही है. इनमें से 300 कंपनी ने पेपर पर कमेंट भी किया. और ये कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में. Interiors. Luxembourg is a country in Europe. India has reserved land twice the size of Luxembourg for industries that want to move out of China and settle in India. ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सच. लेकिन ये सारी न्यूज अब तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है. और जो चीजें नेगेटिव नहीं होती वो यहाँ पर वायरल कहाँ होती? Because to believe that there is something positive happening around us needs patience. India has a long way to go and we cannot boycott China in one day. It is a fact. It's a fact that we don't have electricity, infrastructure, and even skilled labor. But it's also a fact that we have a lot of untapped potential. मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होने वाला है. ये वियतनाम, कोरिया और बांग्लादेश के लोगों को पता है. They are going to use this opportunity. और अगर इंडिया ने अपने नेगेटिव्स पर काम नहीं किया, तो इंडिया एक बड़ा चांस खो देगा. In 2014, we had 2 mobile manufacturing units in India. Right now, we have 268 factories, including Samsung's biggest mobile factory in the world. It's a fact that Donald Trump wants India to be a part of Group of 7, जिसमें अभी world के top countries हैं. He wants to invite India, Australia, and Russia, but not China. The whole point of this video is to show you कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से लेकर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्रीज भी रियलाइज कर चुकी है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया चाइना का अल्टरनेटिव हो सकता है. You see, the only people who don't find it practical are normal people. Common people, हम जैसे लोग. Great historical progress always happens after major disasters. ये मैं नहीं कहता, खुद शी जिनपिंग कहते हैं. शायद हमें उनकी ये बात सुननी चाहिए. History is proof that whenever a country hits rock bottom, it is the people who bring it back to life. जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या किया? जापान क्यों सक्सेसफुल? सिंगापुर से इंडिया क्या सीख सकता है? आने वाले दिनों में हम ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं. इस वीडियो के बाद अगर आप में से कोई एक भी खुद से ये पूछेगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल. शायद यही सवाल सोनम सर ने पूछा होगा, इसीलिए उनको लगा कि हम चाइनीज सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकते हैं. शायद यही सवाल भुवन बम ने पूछा,
इसीलिए उसको लगा कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। शायद यही सवाल सोनू सूद सर ने पूछा, इसीलिए उनको लगा कि हम 18,000 माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें एक कॉमन मैन के लिए इम्पॉसिबल ही लगती है, लेकिन सच है, फैक्ट्स है, हो चुकी। क्योंकि इनके लिए नेसेसिटी प्रैक्टिकलिटी से ऊपर, क्योंकि जब आप खुद से पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तभी आप समझते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। So I was setting the context. I had shown this video, but I had setting this context for respected Sameer sir. Right? हम क्या कर सकते हैं? Some of you, I've already, not some of you, all of you, I had shown you this video. But I now would stop at this stage and give it to my colleague, my brother, Professor Samish Dalal. I'm stopping sharing. This video was a precursor to what you're going to get. Colleagues, those who do not know Samish sir, just watch him in action and you will see why he's the most loved among all the students and faculty members. Over to you, Samish sir. It's all yours. Thank you. Thank you, Menon sir. Thank you very much. And all the guys who are not perhaps knowing me, मेनन सर ने जितना बताया, डोंट टेक इट सीरियसली। वो दिल से बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, दिल से चाहते हैं इसलिए अच्छा बोलते हैं। Alright guys, so good evening and welcome to this session. I hope you have a great time today. And हम लोग आज के दिन को जब तक एंड करेंगे, तो मैंने जो सोचा था, जो मैंने सोचने के लिए ऐसा प्लान किया था कि मैं ये कवर करूंगा, तो मैंने सर के साथ मैंने डिस्कस किया था। उन्होंने बोला था कि पीपीटी, में बोला सर मैं पीपीटी बनाता नहीं। क्यों? क्योंकि शायद मेरे को आता ही नहीं बनाने का, मैं इतना इग्नोरेंट हूं। लेकिन मैंने ये सोच के रखा था कि अपन क्या क्या कवर करेंगे विद द टाइम दैट वाज रिक्वायर्ड एंड विद द टाइम दैट आई विल बी हैविंग। सो गाइस, बिफोर आई जंप ऑन टू दैट, मैं एक ये वीडियो से अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सो गाइस, दो तीन चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 कि वी एज बिजनेस ओनर्स, हमारा पोस्ट लॉकडाउन में what is going to be our role? That is exactly my topic today. मैंने मेनन सर को भी इस बारे में ब्रीफ किया था कि पोस्ट लॉकडाउन what is going to be our role? हमारा ड्यूटी क्या होने वाला है, हमारा कर्तव्य क्या होने वाला है, हम किस तरह से पूरी चीज को देखेंगे। मतलब जब मार्केट खुल जाएगा, लोग खुल जाएंगे, ये अनलॉक 1 चल रहा है, अनलॉक 2 आएगा, अनलॉक 3 आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, what is going to be the real story? उस वक्त हम लोग को किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। So guys, all my dear guys, like दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। इंडियन फैमिली बिजनेस के ओनर्स ये सामान्य ओनर नहीं है। इंडियन फैमिली मैनेज बिजनेस के ओनर्स सामान्य ओनर्स नहीं हैं। वो लोग वो व्यक्ति हैं जो लोग एक रेफरेंस पॉइंट है। आई रिपीट गाइस, इधर देखो मेरे को, रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि भाई मुझे इसके जैसा बनने का है, मुझे वैसा होना है, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे वहां पे जाना है। तू गया था तो मैं जाऊंगा। अरे तूने वियतनाम से प्रोक्योर किया, मैं भी वियतनाम प्रोक्योर करूंगा। कॉपी नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि तेरे को वहां से सस्ता मिला, तो तेरे को यदि वहां से इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की डंडियां सस्ती पड़ी हैं, तो मैं भी वहां पे जाके अगरबत्ती नहीं कुछ और ढूंढ सकता हूं, लेकिन तूने मुझे गाइड किया। ओनर रेफरेंस पॉइंट है। अब सोचो कि जो बंदा रेफरेंस पॉइंट है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। एक कंपनी के सीएफओ को मैं जानता हूं, पिछले 3 महीने से हर व्यक्ति में कोरोना देख रहा है। उसने मेरे को परसों एडमिट किया। हर व्यक्ति में उतरता है तो पट्टा बांध के ऐसा करके इतने स्ट्रेस में 8 किलो तक वजन तोड़ दिया। जस्ट इमेजिन यार, 8 किलो, खाता नहीं है शाम को, शुगर छोड़ दिया, ये वो। मैं बोला भैया क्या कर रहे हो? तो उसने बोला यार बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत कुछ नहीं। मेनन सर, इन केस कभी कभार मेरा कनेक्शन वीक हो जाता है, तो आप यूं कर दीजिए तो मुझे पता चले कि आवाज सब अच्छा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। नहीं, खाली पूछ लिया। हाँ, तो दिस सीएफओ मेरे को जब ऐसा स्टेटमेंट किया, तब मैं शॉक्ड हो गया था। मैं बोला यार, तेरे कितने सारी ऑफिसेज हैं, तेरे वर्ल्ड में कुछ 12 जगह पे ऑफिसेज हैं, उसके एजेंट्स, उसके ये सब तेरे से फोन पे बात करते हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक मस्त चीज है, इना हम लोग गुजराती हैं, मैंने सर भी को काफी गुजराती बना दिया है। मुलुंद में रहते हैं ना, तो 25-60% तो गुजराती बना ही दिया है। मेनन सर को जब फोन करता हूं मैं, या वो मेरे को फोन करते हैं, हम लोग क्या लाइन बोलते हैं, मेनन सर
केम छो? एंड मेनन सर बोलते हैं मजामा। सर बुलशिट मजामा, मतलब एक ऑनेस्ट चीज बताओ, फटी पड़ी हालत है, घर के बाहर जाते हो, बीवी के साथ शॉपिंग करने जाते हो, मतलब टिंडे बटाटा लेने जाते हो, उससे ज्यादा गए नहीं, रेस्टोरेंट में पिछले 5 महीने से गए नहीं, और क्या कहते हैं ये मूवी देखने के लिए गए नहीं, मतलब अंडरस्टैंड द कंडीशन दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड फिर भी ऐसा बोलते हैं कि मजा है, अच्छा लग रहा है। मैं एक व्यापारी को बात कर रहा था, ही इज इन द पेंट बिजनेस, पेंट बिजनेस में है। मैंने उसको बोला कि साहब कैसे हो, उसका मस्त आंसर था, साहब मजे में हूं। फिर नेक्स्ट लाइन मैंने बोला कितने मजे में, बोले इतना मजे में नहीं हूं। बट फर्स्ट लाइन उसका क्या था, मजे में हूं। अभी एक पॉइंट समझने की कोशिश करो कि उसने क्यों बोला। इज अ रेफरेंस पॉइंट, इज अ रेफरेंस पॉइंट। उम्मीद है, ओनर सामान्य नहीं है, उम्मीद है। एंड अभी मैं आपको घर का एग्जांपल ले सकता हूं। घर में यदि आपकी वाइफ भी आप मतलब आप उनके तरफ देख के एक उम्मीद रखते हो, तो आपकी वाइफ भी उस वक्त ओनर हो गई, लीडर हो गई है। अ बिजनेस ओनर इज एन एपिटोम, इज एन एग्जाम्पल, इज द सोर्स ऑफ होप। उम्मीद इज नॉट अ सिंपल पर्सन। क्यों, मैं उसका कारण बताता हूं गाइस। उससे शुरुआत होती है, उससे कोई भी चीज की शुरुआत होती है, यदि जैसे देखता है वैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो अपने एम्प्लॉय का पगार काटता है 2, 5, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना परसेंटेज काटता है, यदि अपने एम्प्लॉय का पगार काटता है तो वो किस तरह से काटता है, उसका अप्रोच कैसा है, दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि वो उसके लिए, उसके जो एम्प्लॉयज है उसके बारे में कैसे सोचेंगे। डोंट फेस देम, ईमेल के एसएमएस करके एक पर्ची पकड़ा दी और बोला कि देख इतना सैलरी कट, फिनिश्ड। उस बंदे ने अपना रिलेशन को लाइफ टाइम के लिए तोड़ दिया। लेकिन बुलाया, बिठाया, समझाया, एंड देन इंटरैक्ट करके उसने एक्सप्लेन किया कि भाई क्या परिस्थिति है, क्या होने वाली है, किस तरह से होगा, फ्यूचर कैसे होने वाला है, डिफर्ड है, फ्यूचर में आ जाएगा पैसा, हम आपको वो वापिस कर देंगे, आपका सैलरी टूटेगा नहीं। जब ये उसने बताया तो लोग डिफरेंटली कनेक्ट हुए। Guys, role of the owner in the post lockdown is going to be a very, very different role. हम आज तक बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते थे, अब लोग बिजनेस डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। यू विल नाउ बी अ रेफरेंस पॉइंट, यू आर लेड बाय एन एग्जाम्पल। और मेरे 3 पॉइंट एजेंडा है, मैं 3 वर्ड्स दूंगा और तीनों वर्ड को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करूंगा, और इस 3 वर्ड के मतलब 3 वर्ड पे पूरा मेरा प्रेजेंटेशन का आधार है। पहला शब्द रीड, READ, रीड। अभी मेनन सर ने एक छोटा सा जोक रखा था, तो उन्होंने कब रख पाए थे, जब उन्होंने उसको पढ़ा था। हर व्यक्ति से मैं ये एग्जांपल बताना चाहता हूं कि गाइस, आई वांट यू टू स्पेंड टाइम रीडिंग। रीडिंग व्हाट? रीडिंग एनीथिंग दैट एनरिचेस योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा मत पढ़ो ये मनोहर कहानियां, ये मैगजीन, वो जो क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पे मिलती है, ऐसे मैगजीन मत पढ़ो। ओके, हाँ, उसका पति मेरा, उसके पति ने किसका मार डाला, चुड़ैल का शादी, ऐसा मत पढ़ो, ऐसा सब मत पढ़ो। अरे पढ़ना एनीथिंग। अभी मैंने किताब कंप्लीट की, लिंकन लीडरशिप, इन लिंकन ऑन लीडरशिप, ब्रिलियंट बुक। मतलब लिंकन की स्टोरी में से कौन से लीडरशिप लेसन्स मिले। अभी मैंने एक दूसरी किताब कंप्लीट की, लुकिंग एट द ईस्ट, और 5 कंट्री का एवोल्यूशन का स्टोरी है, जिसमें साउथ कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, हांगकांग है, ताइवान है। कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, हमसे पहले कितने पीछे थे, अब क्या हो गया, कब वहां पे टर्शरी सेक्टर ज्यादा खुला, कब वहां पे प्रोडक्शन सेक्टर ज्यादा खुला, कब वहां पे इकोनॉमी ज्यादा खुला। हमारे 91 में लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है, तो वहां पे कब हुआ। मैं सिर्फ जानने के लिए, नॉट कि आपको बताने के लिए, सिर्फ जानने के लिए पढ़ा कि कल को यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ बात करता है, मैं अलर्ट रहूंगा। रीड, spend as much time possible as much to read। मतलब आप में से कुछ लोग मिंट पढ़ते होंगे, कुछ लोग कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे गाइस, बट प्लीज रीड एनीथिंग
that enhances your understanding of the market, of the business. Spend that. मतलब इसमें आप कोई दो राय नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक और एग्जांपल देना चाहता हूं. जब भी आप रीड करते हैं तो पता है क्या होता है, आप उसमें एक चीज करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग. अरे हाँ, मैंने ये पढ़ा, तो मेनन सर ने क्लास में ऐसा बोला था, तो क्या ये वही चीज है क्या? दैट इज हाउ यू स्टार्ट प्रोसेसिंग. पढ़ते पढ़ते दिमाग के एंटेना खुल जाते हैं, विजन खुल जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, पिछला कोई मीटिंग हुआ है उसका रेफरेंस रिकॉल हो जाता है. एंड दैट इज व्हेन द डिफरेंस हैपेंस. बट दो चीज का वार्निंग है, दो चीज का वार्निंग. मेनन सर आप टाइप कर रहे हो तो दो चीज का वार्निंग है, वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग. नंबर 1, मेहरबानी करता हूं, don't read anything that is leading or talking to you about anything that is perhaps negative. Perhaps छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं, चाहे फिर वो कुछ भी हो, अपने बारे में भी क्यों ना हो, मत पढ़ो. मैं अपना मुंह मूंदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल आदमी हूं. मैं ऐसा नहीं कि अरे हाँ गलत हो रहा है तो मैं उसको छोड़ दिया, ना. आई एम नॉट बीइंग स्टूपिड गाइज. ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा चलना है. मैं बताता हूं, फिर मैं ऐसा मानता हूं कि नेगेटिव चीज है, मेरे को अवेयरनेस होना चाहिए. पढ़ के दिमाग को कलुषित नहीं करना चाहता हूं. मैं फिर बता रहा हूं, दिमाग को कलुषित नहीं करना चाहता हूं, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ उसको इग्नोर कर रहा हूं. मतलब एक इंटरेस्टिंग वाक्या है मेनन सर, एक इंटरेस्टिंग वाक्या है. मैं एक इन्वेस्टमेंट आदमी को मिला था एंड ही इज बेस्ड इन यूएस एंड उनका उम्र आज 72 है, लेकिन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट मे बी many years back, maybe 1972-73. वो मेरे को बताते कि समीश मैंने तो मैथमेटिक्स डिराइव किया है कि हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, दिस दैट एक्सेट्रा, पूरा स्टोरी उन्होंने बताया. हम लोग बात करते करते बताया, मैं सर आप न्यूज कितना पढ़ते हैं? उसने मस्त आंसर दिया, बट आई डोंट रीड न्यूज. मैं बोला क्यों? बोले दे डोंट एनरिच मी. The only news I read is what are my stocks doing, what are my companies doing. My companies, सुनो, my companies. उन्होंने अभी टेस्ला गाड़ी बाय किया, तो मैंने बोला कर इतना महंगा गाड़ी? उसने मस्त जवाब दिया, बोले टेस्ला पेड फॉर टेस्ला. तो उनके पास टेस्ला के शेयर्स थे, बेचा और उसमें से गाड़ी खरीदी. मैं क्यों अपना पैसा लगाऊं? मैंने लगाया इतना, पूरी गाड़ी आ गई, आई एम हैप्पी विथ इट. नाउ इमेजिन द साइक ऑफ दिस पर्सन. पर ये कब हुआ? तो उन्होंने बोला कि 1972 से 1978 उनकी जिंदगी के फाउंडेशन पीरियड थे. जब वो यूएस शिफ्ट हुए थे तो वहां पे वो पढ़ते रहते थे. क्या पढ़ते थे? कंपनीज कैसे चलती है, बिजनेस कैसे चलता है, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, कौन सा कंपनी कितना टाइम चलता है, एवरीथिंग यूज्ड टू कीप ऑन रीडिंग. At one point of time, he used to spend time reading a financial newspaper from company's point of view. He said, I never invest in a company. I always invest in a business. पर ये कब बंदा आदमी मजबूत होता है? जब पढ़ता है. तो please guys spend time reading things that are focused on your enrichment. So as a business owner, आपका पहला कर्तव्य है read. Read as much as you can that is focused on enrichment. फिलहाल I am reading one book which is on services marketing and उसमें सिर्फ स्टोरीज हैं. तो पता चलेगा कि ये 1 महीने के बाद मेरे पास इतनी स्टोरीज आ जाएगी ऑन सर्विसेज मार्केटिंग कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, पैसा जाएगा तो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, केस स्टडीज बनेंगे. मतलब अपने बच्चों के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करूंगा तो उसमें से अपने को मालूम पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो अपना अक्षय कल्याणपुर जो अपना धंधा करता है वो बोलेगा कि सर पर मेरा तो टूल्स का धंधा है, मेरा इंजीनियरिंग बेस्ड बिजनेस है. आई नो बिकॉज मैंने उसके साथ उस वक्त इंटरेक्ट भी किया था. इज इंजीनियर, तो ज्यादातर टूल बेस्ड बिजनेस है.
उसमें सर्विस का एलिमेंट कैसे आ सकता है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जब पढ़ता हूं अपने बच्चों का विचार आता है, एंड एग्जैक्टली यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा। आज मैं पढ़ रहा था, उसके बीच में 3 फोन कॉल आए, मैंने उनको तीनों को बोला बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते, तीनों के साथ मैंने बाद में फोन पे बात करी। मैं जो पढ़ रहा था उसके साथ मैंने उसको रिलेट भी किया, अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज नॉट अबाउट एडवाइसिंग, इट इज नॉट अबाउट एडवाइसिंग, रिलेट करने के लिए, एंड दैट इज एनरिचमेंट। परिमल सर के साथ एक बार मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि परिमल सर, मैंने लॉकडाउन पीरियड में ये किया। उनका नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन, बोले समीश भाई कितना पढ़ा और क्या पढ़ा? मेरे को मालूम था ये आने वाला था, उनको मालूम है पढ़ने में मैं चोर हूं। मेनी पीपल नो दैट। पढ़ते पढ़ते साली नींद ही लग जाती है, लेकिन अभी तो काफी नींद कवर हो गई है। इसलिए क्या करने का, पढ़ते पढ़ो। एंड फिर मेरे को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता ना, हाईलाइटर चालू किया। कभी कभार नॉन रिलेवेंट टॉपिक को भी हाईलाइट कर देता हूं, लेकिन हर 2-4 मिनट में पेन घुमा दिया ना तो अलर्ट रहा हूं, अलर्ट रहा हूं, अलर्ट रहा हूं, तो चलता रहता है। कुछ लोग पेन से मार्किंग करते, करो, आपका मर्जी है गाइस, आपका मर्जी है। I started reading a very interesting article by Harvard which is on negotiating people in difficult situations. Difficult people नहीं, difficult situations. बंदे की परिस्थिति खराब है तो उसमें उसको कैसे नेगोशिएट करा जाए, किस तरह से वो बंदा सोचेगा, किस तरह से हमारे साथ बात करेगा, क्यों ऐसे बात करेगा। यदि कोई बंदा मेनन सर के पास आएगा या कोई बच्चा अपना आयुष के पास आएगा, कोई बच्चा अभिषेक के पास जाएगा, बोले सर मुझे तो ये करने का, ये टेरिटरी डेवलप करने का है लेकिन मुझे आता नहीं, या कोई बच्चा आपके पास कोई लड़का ऐसा आपके पास आएगा, बोले सर मेरे को ये प्रोडक्ट डेवलप करना है लेकिन मेरे को आता नहीं, या फिर कोई बंदा उल्टा आएगा, सर आपने हमारा सैलरी काटा लेकिन बोल रहे हैं डिफर, लेकिन सर मेरे को तो अभी पैसे का जरूरत है। बंदा डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बंदा डिफिकल्ट नहीं है, सिचुएशन डिफिकल्ट है, कैसे नेगोशिएट करोगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्योरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिस। मैंने ये थ्योरी सुना, पढ़ा, प्रैक्टिस अपने एफएमबी के बच्चों में चेक किया, और वो मेरा दूसरा पॉइंट आएगा। नहीं गाइस, मेरा पहले पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट एजेंडा बोला, 3 वर्ड्स, बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े, ओके। वो READ, रीड पहला शब्द हो गया। दूसरा शब्द याद रखो, इंटरैक्ट। मैंने सर बोल्ड में लिखे ना, कैपिटल में लिखो नीचे, इंटरैक्ट, करेक्ट। बस यहां पे स्टोरी खत्म हो गई, तीसरा आएगा, डोंट वरी, तीसरा आएगा, लेकिन अभी यहां पे डन हो गया। क्योंकि जो मैंने रीड किया उसको टेस्ट किया, जो रीड किया उसको चेक किया, जो रीड किया उसको समझा, जो समझा उसको भी रीड किया, उल्टा भी किया। अभी अभी मेनन सर ने बोला कि एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है फॉर एक्सपोर्ट। मेनन सर, एक सब जबरदस्त न्यूज देता हूं। अभी कल ही मेरे को अपना एक बच्चा है, मेरे को मैसेज करता है, बोले लॉकडाउन पीरियड में साउथ कोरिया की एक पार्टी को उसने माल सप्लाई करना चालू किया। मैं बोला क्या बात करता है, कुछ भी बोलता है लॉकडाउन पीरियड में। बोला हाँ सर हकीकत है। मैंने उसको रिप्लाई किया, टेल मी मोर। उसने इतना बड़ा सा व्हाट्सएप भेजा। मैं बोला अच्छा ठीक है। अभी मैंने उसको फोन किया, आज मैंने उसके साथ फोन पे लगभग 45 मिनट स्पेंड किया टू अंडरस्टैंड क्या हुआ। तो एक्चुअली लॉस्ट आउट केस था और वो केस उसने टर्न अराउंड किया। लॉस्ट आउट केस था, टर्न अराउंड किया। गाइस, you are the owner of the business, you are the reference point, you cannot afford to be low, and high रहने के लिए एक मंत्र है, and that is interact with people of your level, your caliber, your know-how, your talent, your group, BNI, ये वो जहां पे भी जाओ एंजॉय करो उसके साथ इंटरेक्शन करने में। वो लोग कोरोना की बात नहीं करते हैं, वो लोग लॉकडाउन की बात नहीं करते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं बस फटी पड़ी हालत तो है, ये जानते हैं, चल रास्ता ढूंढते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन द परसूट ऑफ फाइंडिंग अ वे आउट, दे आर ऑलवेज ऑन द परसूट ऑफ फाइंडिंग अ वे आउट। कोई बंदा मैंने आज तक देखा नहीं जिसने ऐसा बोला शिट यार, मतलब इट्स डैम स्क्रूड लाइफ, ऐसा करके नहीं बोला। बोला यार परिस्थिति खराब है लेकिन रास्ता ढूंढना पड़ेगा। 2 व्यापारी जब इकट्ठे हो ऐसी बात की, पहली 1 मिनट के लिए ऐसा करेंगे, क्या हाल है मेनन, क्या हाल है दलाल, कैसा चल रहा है, बेकार है, ऐसा 5 मिनट तक चला। 6ठी मिनट रास्ता ढूंढते हैं ब्रो, कुछ रास्ता तो निकलेगा यार, तू क्या कर रहा है आजकल, अच्छा ऐसा कर रहा है, हम लोग ऐसा चालू किए हैं।
शिपिंग इंडस्ट्री से लेके ट्रैवल इंडस्ट्री में अपने हर बच्चे जो रियल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं उनकी हालत खराब है। अग्रीड। कुछ लोग 60-70% हिट हो रहे हैं, कुछ लोग 70-80-90% हिट हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो पूरा साल वॉश आउट होने वाला है। पर वो लोग भी दूसरों के साथ मिलते हैं और मिलते मिलते जो वो लर्न करते हैं वो अपने प्रोसेस को इंप्रोवाइज करते हैं, अपने बिजनेस को इंप्रोवाइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंप्रोवाइज करते हैं, अपने सर्विस को इंप्रोवाइज करते हैं और उस प्रोसेस में दूसरों को एक उम्मीद दिखाते हैं। एम्प्लॉयज देखते हैं, वाह मेरे सर ऐसा नया सीख के आए हैं, हम लोग बच जाएंगे। जब वो लोग इस तरह से देखते हैं तो उनकी उम्मीद जागती है। यू आर होप, यू आर होप। गाइज प्लीज जरा भी गलती नहीं करना, जरा भी गलती नहीं करना। आप उम्मीद हो ना ही आपके एम्प्लॉयज की, आपके कस्टमर की, सप्लायर की, आपके परिवार की, एम्प्लॉयज के परिवार की। मैं सोसाइटी, समाज, इकोनॉमी, टैक्स, गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो डायरेक्टली हमारे साथ अटैच्ड है, डायरेक्ट कनेक्टेड। हमारा परिवार, हमारे एम्प्लॉयज, उनका परिवार, कस्टमर, सप्लायर, डायरेक्ट कनेक्टेड, वो बात कर रहा हूं। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक सेकंड के लिए सोचो कि आपने एक लो डाउन किया और उसके कारण आपका एम्प्लॉय जब शेक हो जाता है, जब आपका एम्प्लॉय ऐसा फील करने लगता है कि शिट यार मेरे बॉस में वो स्पिरिट नहीं है, इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो बाहर निकल के बोलेगा मेरा सेठ है ना, धंधा नहीं कर पाएगा, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, मेरा सेठ धंधा ही नहीं कर पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, मेरा सेठ पुल थ्रू नहीं कर पाएगा। They start feeling bad about us. So that is my very, very important point. Learn to interact. मैं 3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल, पिछले 60 दिन में एक बच्चा मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू डू अ बिजनेस इन ईरान। टेक्निकल टाई अप, इंडिया से टेक्नोलॉजी वहां पे भेजेगा और वहां पे काम होगा ईरान में। ये पिछले 2 महीने के अंदर की बात है, नो 2 महीने, जून का पहला वीक ही पकड़ लो, जून के पहले वीक में। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट डूइंग बिजनेस इन ईरान। दूसरा एग्जांपल, अपना एक बच्चा है, ही हैज थॉट अबाउट डूइंग बिजनेस इन दुबई। इस टाइम पे मैं बोला अभी कंज्यूमेबल्स में रोटी पराठा, बोले सर सिंपल मॉडल समझो, बहुत सारे लोग कैंप्स में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, खाना मिलता है तो सिर्फ सब्जी मिलती है, रोटी चपाटी नहीं मिलती है। मैं रोटी चपाटी सप्लाई करूंगा एंड रेडी में, मतलब सीधा उनको गर्म भी नहीं करने का, सीधा जाके कंज्यूम करने का, उसका बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है। एंड ही इज एक्चुअली डन दैट। उसका प्रोसेस सब मैं देखा है। अभी इस टाइम पे इसने सोचा ऐसा। गाइस फॉर लास्ट 80 डेज या 82 डेज जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, आई हैव नॉट हर्ड वन स्टोरी इन विच anybody has come and told me कि सर खलास हो गया। जितने भी आके मेरे को बोले कि हाँ सर इट्स अ बैड टाइम, बैडली इंजर्ड, बट वी हैव फाउंड अ वे टू स्टे अफ्लोट। याद रखो लाइन, वी हैव फाउंड अ वे टू स्टे अफ्लोट। क्योंकि यदि वो वीडियो में जो लड़का बोला वो हकीकत है, यदि हम लोग जो बात करते हैं वो हकीकत है, तो अगला 2021-2022 हमारा होगा। एंड यदि हम टिके रहेंगे, अफ्लोट होएंगे, डूबेंगे नहीं, तो वी विल बी देयर टू कैप्चर द मोस्ट ऑफ द न्यू अपकमिंग अपॉर्चुनिटी। 100%, 110%। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एवरीबडी फोकस। थोड़ी हिस्ट्री है, बट 2 मिनट लूंगा आप लोग से उस हिस्ट्री में जाने के लिए, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग उस हिस्ट्री को जानते नहीं होंगे। यू नो गाइस क्या हुआ, जब एक ऐसा पीरियड था कि जब इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का बूम था, तो एट दैट टाइम
everybody wanted to get into that business. There were some companies who initially started big time, invested a lot of money. Now when they invested a lot of money, एक example कर लेते हैं, assume that हम लोग ये Zoom पे कर रहे हैं जो every minute is charged for 30 rupees. Every minute is charged for 30 rupees. Will we be able to do this activity? Not every day. Why? Because it's going to be very expensive. 30 into 60 मतलब 1800 रुपया तो खाली एक दिन का हो गया. हर रोज का गिन लो कितना होएगा. So what happened is, when say for example ये मेनन सर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है, पर ये प्रोजेक्ट चला नहीं, तो फंडर बोला कि मेरा पैसा तो डूब गया. अब बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि भाई इसका पैसा तो डूब गया, मैं फंडर था, मैं क्या करूं. बैंक बोलता है कि एसेट किसके पास है. बोले एसेट उसके पास थी, लेकिन मैं फंडर था तो आई कैन टेक बैक द एसेट. बोले काम करो मेनन, आप एसेट वापस ले लो. ऐसा करके मेनन सर ने एसेट वापस ले लिया, बैंक ने बोला तो. नाउ एसेट इज विद मेनन सर. दैट कंपनी इज ऑलमोस्ट गॉन बैंकक्रप्ट एंड 30 रुपीज पे जो लगा हुआ था वो कॉल का चार्ज को पे नहीं कर रहा था. तो एसेट खड़ी है, बंदा नहीं है. मेनन सर मार्केट में घूम रहे हैं. ये देख के कृष्णा, फिर आयुष, अभिषेक, अक्षय, ये सब मार्केट में घूम रहे थे. अमित, अमोल सब घूम रहे थे. एंड घूमते घूमते उन्होंने इनको देखा. बोले अरे मेनन सर आप. बोले मेरे पास ये एसेट है. व्हाट टू डू नाउ. सर एक काम करते हैं सर, मैं इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, लेकिन आपने जो लगाया वो अमाउंट नहीं है मेरे पास. तो कितना है. सर 20% पैसा है. क्या बात कर रहे हैं. हाँ सर, लेकिन एक काम करते हैं ना, 20% पैसा लगाते हैं और आपकी एसेट का यूज करना शुरू करते हैं. अंडरस्टैंड द वर्ड्स. एसेट को यूज करना शुरू करते हैं. अच्छा मतलब सर क्या है कि पहले आप 30 रुपया चार्ज करते थे ना एक कॉल पे. मैं हाँ, एक काम करो, 1 पैसा कर दो. पहले पागल हो गया. अरे सर समझो सर, 1 पैसा कर दो, मफत हो जाएगा, लोग यूज करना ज्यादा चालू करेंगे. आइडिया में दम है. पैसा ज्यादा आप रख लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका है. हमारा तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, हम थोड़ा रखेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में हम लोगों को बताएंगे कि कितना वॉल्यूम हो गया, कितना धंधा हो गया. धंधे का वैल्यूएशन ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो गए. कस्टमर ज्यादा हो गए तो अपना तो धंधा फाट निकला, ग्रो हो गया. एंड देन मेनन सर ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई ये मेरा धंधा है, इतना ग्रो हो गया. Now there are line of people who are coming and saying, bro, we would like to invest in your business. What is the value of your business? वो जो 20% में अक्षय ने पैसा लगाया था, 20% में अपना अभिषेक ने पैसा लगाया था, वो सब बोलते हैं मेनन सर अब मजा आएगा, हमारा वो 10-20% जहाँ पैसा लगा था इतना ग्रो होगा. बोलेगा भाई तो पूरा लगाया था ना सर, आप ज्यादा ले लो. लेकिन इमेजिन कि क्या होएगा जब नेक्स्ट बूम आया. तब तक मेनन सर को भी फायदा हुआ, इसको भी फायदा होगा, सब लोग को फायदा हुआ. The one who stayed afloat was at the advantage. The one who was not at afloat was not an advantage. मायूस होके, दुखी होके जो बंदा पीछे हट गया, फिनिश्ड हो गया. मायूस होके, दुखी होके जो पीछे हट गया, फिनिश हो गया. जो बंदा टिका रहा वो जीत गया. पर टिके रहने के लिए, जैसे अपन स्विमिंग पूल में टिके रहने के लिए एक बैंड लगाते हैं, एक दूसरे बिजनेसमैन का सहारा चाहिए. वी आर नॉट गॉड गिफ्टेड. वी आर नॉट गॉड गिफ्टेड. वी आर गिफ्टेड विथ रिलेशनशिप. आज मेनन सर का जब मेरे को फोन आया, मैंने बोला कि मेनन सर आप बोलो तो कोई सवाल ही नहीं है. भाई संबंध है यार, कोई डाउट नहीं है, संबंध है. तो ये जो संबंध है, रिलेशन है, इस रिलेशन को नर्चर करो. बिजनेस ओनर हो, इंटरैक्ट करो, लोगों के साथ तालमेल बिठाओ. फ्री बैठे हो, फोन उठाओ, फोन में कोई भी नंबर रैंडमली ऐसा पकड़ो और पट लेके फोन करो. हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो, क्या कर रहे हो, अभी ये कर रहे हो, अच्छा ठीक है मैं भी ये कर रहा हूं. बात करना शुरू करो.
कोई बंदा बोलेगा कि मैं बिजी हूं, कोई बात नहीं, 2 घंटे के बाद बात करेंगे, इतने तो कहां कोई बिजी होने वाला है। वैसे अभी तो प्रीत फ्री है, कोई इतना बिजी हो ही नहीं सकता है, लॉकडाउन है। ज्यादा नखरे करता है उसकी वाइफ को फोन करो, बोले देखो ना कब के शांति से ही बैठे हैं, आपका फोन का वेट ही कर रहे थे, खाली खाली भाव खा रहे हैं। पकड़ो, लोगों को पकड़ो, इंटरैक्ट करो, क्योंकि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को समझ सकता है, तो उनके साथ इंटरैक्ट करो। अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो, गुनाह हो जाएगा यदि अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे तो, गुनाह। ओके, सो दैट वाज माय सेकंड पॉइंट, इंटरैक्ट। एंड मैं आपको बताता हूं, मैं हर रोज 3 से 4 लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूं, एक एक बंदे के साथ मैं 30-35 से कभी 40-50 मिनट तक स्पेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि यार मतलब मैं बात निपटाने में तो मानता ही नहीं हूं, मैं बात निपटाने में मानता ही नहीं हूं, मैं तो इस चीज में मानता हूं कि यार कैसे किया, क्यों किया, कहां किया, किस तरह से किया, कौन सा अपॉर्चुनिटी किस तरह से ग्रो करेगा, क्या नया लेके आ रहा है, अच्छा तूने कैसे सीखा, ये नई अपॉर्चुनिटी बस कैसे आई, क्यों, ये तो कॉन्वर्सेशन डजंट एंड। मतलब हम दोनों एक दूसरे को लास्ट में ऐसा बोलते हैं, तो सर मैं फिर नेक्स्ट टाइम अपने डिटेल में ज्यादा बात करें, मतलब मैं बोला हाँ बेटा नेक्स्ट टाइम डिटेल में ज्यादा बात करेंगे। तो अब तक क्या कर रहा था बेवकूफ, डिटेल ही तो कर रहे थे दोनों, लेकिन और कितना डिटेल, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। Interact, and trust me guys, each businessman at least talking to another 5 business people, ये जितनी दवाई कोरोना की मिलती है बाजार में उससे पावरफुल स्टेरॉइड है, उससे पावरफुल स्टेरॉइड है। परसों मैं गया था अपने एक स्टूडेंट के यहां विले पार्ले में, और उसने मेरे को बोला कि मैं भी आ रहा हूं समीश भाई, ओके, अपना ओएमपी पार्टिसिपेंट है, समीश भाई कहने का उसका अधिकार है। मैंने सर, मैं मेरी वाइफ को लेके गया था बजट करके, मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि देख ये होएंगे ने तो कम से कम 1 घंटा जाएगा। मेरे को बोलती है कि तू 1 घंटा, बोला हाँ। तो दोनों मास्क पहन के गए, फिर उसने मास्क उतार दिया क्योंकि चाय आई, अभी मेरे सामने चाय आएगी तो अपना मास्क तो उतर जाएगा, 100% गारंटीड है। हम लोग 1.5 घंटे तक बात किए, उसने अपनी इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में, ये स्टार्टेड एक्सपोर्ट टू 8 more countries, now he is exporting 85 countries in the world, 85 countries। मैं घर पे बैठा रहता तो मेरे को कौन बताता, मैं उसको मिला, मेरे को मालूम पड़ा स्टील का काम करता है, स्टील का काम करता है, 85 कंट्रीज, 8 कंट्री अभी के टाइम में जोड़ा, और उसने रूल भी बनाया, बोले कि अभी के टाइम में कोई नया काम नहीं लेंगे, लेकिन यदि पुराना कस्टमर होगा, उसने बोला कि ये ऑर्डर रिपीट करोगे इमीडिएटली प्रोसेस करके दे देने का, इमीडिएटली प्रोसेस करो दे दो, इमीडिएटली प्रोसेस करो दे दो। फैक्ट्री चल रहा है, क्यों, रेडी स्टॉक रखो, ये ज्यादा फास्ट मूविंग है, फट 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 रिक्वायरमेंट आएगी। इमेजिन द स्पिरिट ऑफ दिस गाय गाइस, इमेजिन द स्पिरिट। प्लीज इंटरैक्ट। मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, रीड था, इंटरैक्ट था, 3rd पैरामीटर मैंने बताया था, बाकी है क्वेश्चन। क्वेश्चन, सवाल पूछो, सुन के बैठ मत जाओ, सवाल पूछो। एंड सवाल अवेयरनेस एंड नॉलेज बढ़ाने के लिए होना चाहिए, सामने वाले की खींचने के लिए नहीं होना चाहिए, खींचने के लिए नहीं होना चाहिए, अपना अवेयरनेस बनाने के लिए। अपना एक बच्चा है, उसके फैमिली में 8 जन को कोरोना वायरस से इफेक्ट हुआ था, 9 जन को, सॉरी। उसका फोन आया, मैं उसके साथ उसके धंधे की पहले बात की और उसके बाद उसके फैमिली के बारे में बात किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने को क्या अफेक्ट हुआ, कब इलाज हुआ, कौन सी हॉस्पिटल में, किस तरह से वापिस आए, कौन वापिस नहीं आया, कहां से शुरू हुआ, कौन सा सोर्स था। वो मेरे को, माय वाइफ वाज टेलिंग मी जोक करके, बोले इतना तो उसके फैमिली में किसी ने नहीं पूछा होगा। मैं तो, मेरे को एक बात बता, आर यू मोर अवेयर देन यस्टरडे? बोले यस, दैट्स इट, दैट्स इट। डर निकल जाता है, क्वेश्चन पूछो, डर निकल जाता है। अरे गाइस, आज की तारीख में 15 दिन पहले आपका यही समीश दलाल नानावटी में जाके ब्लड डोनेट करके आया।
ब्लड डोनेट करके आया। और मैं जब ब्लड डोनेट करने गया तो मेरे को कितने सारे लोगों ने बोला कि कहां जा रहा है ब्लड डोनेट कर। मैं बोला यार अपने पास देने के लिए है क्या, एक इतना ही तो मांग रहे हैं, 450 ml खून मांग रहे हैं, कितनों को लाइफ मिलेगी। दैट लेडी वॉज इन टीयर्स, मेरे को बोलती है, मैं बोला कि तू बोल नेक्स्ट वीक मैं मेरे बेटे को लेके आता हूं, वो भी 18 का हो गया, 60 से ज्यादा वजन है, क्या चाहिए, जब अपने के खून दे दो। मैंने किसी और फैमिली को बोला, होता क्या यार उधर जाना नहीं चाहिए था नानावटी में, बोला कुछ नहीं हुआ, देख जिंदा हूं, 15 दिन है हो गया, एंड अभी तो वो पुराना खून गया, नया खून बनने लगा है। गाइस, मैंने उस डॉक्टर के साथ 30 मिनट्स बात किया, ये जानने के लिए कि व्हाट सेफ्टी एम आई सपोज टू मेंटेन सो दैट व्हेन आई कम देयर मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस। फिर क्या था, माय वाइफ केम टू ड्रॉप मी टू दी हॉस्पिटल, फिर वो बाहर पार्किंग में खड़ी थी, मेरे को ऐसा सब पहनाया, मैं इधर लेके गया, मेरा मेजर किया, ऑल ओके, मैं अंदर गया, अरे एक डेयरी मिल्क दिया। मैंने सर डेयरी मिल्क दिया, बोलो मतलब फ्रूटी पिया, डेयरी मिल्क दिया, इतना कौन देता है सोचो, खाली 450 ml के सामने क्या रिवॉर्ड मिला। एंड वो मैं लेडी के साथ कंपटीशन किया, मैं बोला देख 5 मिनट में 450 ml भर जाएगा, बोलती सर नॉट पॉसिबल, बोले मेरा खून दो बंदा दौड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली 5.05 मिनट्स में इट वाज डन, 5 मिनट एंड 5 सेकंड्स, 450 ml खून डन। बहुत सिंपल है, सवाल पूछोगे तो जागृति रहेगी, सवाल पूछोगे तो अवेयर रहोगे, सवाल पूछोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल पूछोगे तो अवेयरनेस आएगी। सवाल नहीं पूछोगे, सुन के बैठ जाओगे तो आपको कोई बोलेगा तूने ये पूछा ही नहीं, तूने ऐसा किया ही नहीं। अब मैं जो ईरान वाला एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मैंने, उसके फादर ने, हम दोनों ने फेस टाइम किया 1 hour and 10 minutes, वन अंडरस्टूड द होल बिजनेस। क्यों ईरान, कैसे ईरान, कहां से कर सकते, कैसे कर सकते हैं, कौन से केमिकल है, किस तरह से केमिकल है, वो केमिकल वहां पे क्यों नहीं है, ये लोग कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का चार्ज करेंगे, कब करेंगे, कैसे कर... went into the core, got the element out of it and then gave it to him। कल मैं जो ये बोल रहा था हैदराबाद के लड़के का जिसने सॉफ्टवेयर चालू किया, सेम थिंग। पर हुआ क्या कि आज मेरे पास आप में से कोई भी पूछता है, मालूम पड़ गया ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। मैंने सर एक टास्क फोर्स बना रहे एक्सपोर्ट का, मैं उनको 5 और नाम दे सकता हूं, सर आप इनको भी शामिल करो, इनको भी शामिल करो। पर देखो ये लोग अभी के टाइम में काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनका बिजनेस में कैसे इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है उनके कारण अपने 2-4 और बच्चे को फायदा हो जाए। मैंने दूसरा पॉइंट बोला था ना, इंटरैक्ट, बेनिफिट की। हम लोग है ना, हम लोग सब ह्यूमन ऐसा नेट बना के खड़े हैं एक दूसरे का, ऐसा तू मेरे कंधे पे रख के जा, मैं तेरे कंधे पे रख के जाता हूं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं। खेकड़े नहीं है, इंसान है, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ेंगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ इंडियन फैमिली बिजनेस ओनर्स। ओके गाइस, एनीवेज मेरा जो काम था, मेरा जो आपको बताने का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसी एंगल से था कि द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन द फ्यूचर इज नॉट ओनली बिजनेस डेवलपमेंट, दैट रिमेन्स एज इट इज, नो चेंजेस टू दैट, but the second more important role is you are hope, you are उम्मीद। एक ऐसी उम्मीद जो सब लोग ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स की तरह देखते हैं। मेरा सर टिक गया, मेरा साहेब टिक गया, मेरे सेठ की कंपनी बच गई, तो अगले साल हमको बहुत अच्छा फायदा होगा। That's it। मतलब नो ऑफेंस टू एनीबडी एल्स, बट एक बंदे ने इतने सारे डील्स किए, अब सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी डील से कितने लोग इंस्पायर हो गए होंगे कि यार बरोबर है, अब ये कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट। यदि वो ही ऐसा अनाउंसमेंट कर देता, नो हम लोग तो खलास हो गए, एकदम फिनिश हो गए, इंडस्ट्री टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है। यदि आज मैं आपके सामने 5 बार 10 बार ऐसा बोल दूंगा ना कि ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला है, गाइस ट्रस्ट मी,
यहाँ पे अभी 120 125 लोग दिख रहे हैं, 12 लोग दिखेंगे एंड लोग भाग जाएंगे, बोले इसके में उम्मीद ही नहीं है। अरे बॉस, आज जिस बंदे ने उम्मीद नहीं दिखाई ना, वो बंदे को कोई खड़ा नहीं रखता है। क्या बात करते हैं। तो आप लोग उम्मीद हो, आप लोग उम्मीद हो, तो उम्मीद मजबूत होनी चाहिए। और मजबूती 3 चीजों से मिली, रीड, इंटरैक्ट, क्वेश्चन। ट्राइपॉइड है ऐसा, 1 2 3, बस ऐसे इन 3 पायों पे खड़ा ये, खाली खाली नहीं, रिसर्च किया हुआ, रिसर्च किया हुआ। रीड, इंटरैक्ट, क्वेश्चन। मेनन सर मेरे पास 2 मिनट है एक्स्ट्रा। 5 मिनट है सर, आप ही बता दीजिए सब। हाँ, एक चीज मैंने नहीं यूज करी है एंड वो डेलिबरेटली नहीं करी है। अरे इधर देखो, मेरे आंखों में देखो, मैं देखो स्क्रीन का कितना करीब आ गया हूं, साला लगता है घुस जाऊंगा अंदर। एक चीज मैंने यूज नहीं करी एंड वो है CSEE। मेहरबानी करके देखो, 2 हाथ जोड़ता हूं, फालतू चीजें मत देखो, फॉरवर्ड्स मत देखो। मतलब कभी कभार मैं न्यूज कभी कभार देख लिया ना तो इतना हंसता हूं, मैंने सर न्यूज कैसे आते हैं। अब दिल्ली मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में 1 लाख केस होने को आए हैं, मुंबई को बहुत करीब पकड़ने आया है। अरे कोरोना का केस कोई रेस है क्या? गोल्ड मेडल मिलने वाला है क्या? व्हाट द हेल यार, हम लोग क्या न्यूज फैला रहे हैं? स्टॉप सीइंग द वीडियोस, स्टॉप सीइंग एनीथिंग, सी योर बिजनेस। एक मैं मस्त चीज बताता हूं, ऐसा कभी जिंदगी में, टच वुड मेनन सर आपको मैंने टच किया, कभी ऐसा जिंदगी में हुआ नहीं, मैं चाहता हूं कभी होए नहीं, बट कभी भी ऐसा बैड टाइम आता है ना, तो पता है मैं क्या करता हूं? मैं बाहर चला जाता हूं, अंधेरी रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहता हूं, अपने कैंपस के बाहर खड़ा रहता हूं एंड उधर लोगों की मोमेंटम देखता हूं, खुद ब खुद फील करता हूं, ब्रो नथिंग इज स्टिल लॉस्ट, एवरीथिंग्स परफेक्ट फाइन, इट्स वर्किंग एंड दैट्स द रियल थिंग। व्हाट्सएप इज नॉट रियल, फॉरवर्ड मैसेजेस आर नॉट रियल। मतलब कभी भी ऐसा हुआ, जस्ट जाके ऐसा खड़ा रहा, माय गुडनेस, लोग देखो क्या दौड़ते हैं, अरे इतना प्रोडक्ट बिक रहा है, देखो इधर वड़ा पाव बिक रहा है, इधर चना चोर गरम बिक रहा है, इधर फ्रूटी बिक रही है, लुक एट दैट, ओ माय गॉड, लाइक वाह वाह वाह, इट्स जस्ट हैपनिंग। अब जब इतना चीजें हो रहा है तो यार कहां कहां अब क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। There's nothing bad happening. That's an assurance. And that is what I do. ऐसा अभी दिन आया नहीं, लेकिन आता तो कभी मैं इससे चले जाता हूं। I stand there, observe and enjoy that. But I have, and I think वो मैं थोड़ा फिलोसॉफी में 1 सेकंड के लिए जाऊंगा, फिर वापिस आ जाऊंगा कि मैं फिलोसॉफी में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। पर मेरे को सब लोग बोले कि सीक्रेट जैसी कोई किताब थी जिसमें ऐसा लिखा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा कायनात करके देती है। ओके, तो एल्केमिस्ट ने भी ऐसे ही बोला था। तो मैंने फोन पे आज तक एक भी फॉरवर्ड ऐसा नहीं आया है विच इज टॉकिंग अबाउट एनी शिट थिंग। आई डोंट नो हाउ, आज तक नहीं आया, एक भी नहीं आया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने खोला नहीं है। एक तो मेरे में क्या है कि फोटो एंड वीडियो किसी को बताना पड़ेगा भाई ये डाउनलोड करो, तभी मैं डाउनलोड करता हूं। क्यों? क्योंकि फोन खाली खाली भर जाता है। पर अदरवाइज भी मेरे पास आया ही नहीं है। कोई बच्चा बोला मेरे पास नया यूवी सैनिटाइजर का प्रोडक्ट आया तो उसका वीडियो भेजा, तो देखा, ये देखा, वो देखा, बट अदरवाइज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट नो हाउ कम, बट इट्स नॉट कम ओनली, एंड आई एम स्टिल वंडरिंग that God can not be more kind than this। यार इससे क्या ज्यादा मांगे कोई? बट मुझे नए नए मैसेजेस जरूर आते हैं कि सर हमने धंधे में ऐसा किया, हमने धंधे में ऐसा किया, हमने धंधे में ऐसे किया। एंड दैट इज वेयर माय इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू गाइस कीप्स ऑन हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस।
एंड वही इंटरेक्शन मुझे मजबूत एक चीज को बिलीव करता है, एंड दैट विल बी माय एंड. द आंसर टू bouncing back of this country does not lie with large corporations. It only is in the hands of family business. And ये मेरा कन्विक्शन पे कोई चैलेंज करे बंदा बेचारा बहुत बुरी तरह हारेगा. तो यही विश्वास के साथ आप सब, हम सब की उम्मीद है, आपके आजू बाजू के लोगों की उम्मीद है. एक जन कोई मैसेज में एकदम चैट पे मेरा नजर गया, पार्थ चावड़ा, आई वुड बैन फॉरवर्डिंग फीचर. हाँ पार्थ, आप एकदम सही कह रहे हो. मैं बहुत बार ये जोक कर चुका हूं हमारे घर में कि व्हाट्सएप में फॉरवर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाना चाहिए. देखना क्या हो जाएगा. 50% से ज्यादा लोगों की राहत हो जाएगी. 50% से ज्यादा लोगों की राहत हो जाएगी. अरे पूरा प्रोसेस ही बंद हो जाएगा. कॉपी पेस्ट में बहुत टाइम जाएगा, बंदा करना बंद कर देगा. एंड दैट इज द रियल थिंग. दैट इज द रियल थिंग. एनीवेज, सो इंडियन फैमिली बिजनेस, आप लोग दूसरों की उम्मीद हो, हमारी उम्मीद हो, आपके परिवार, आपके एम्प्लॉइज की उम्मीद हो, और उम्मीद का जो हमारा तंबू है वो 3 बंबू पे खड़ा है: रीड, इंटरैक्ट एंड क्वेश्चन. एंड मेहरबानी करके इन 3 ही तंबू को फॉलो करिए. बाकी और कोई तंबू जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन वो आपको मजबूत बनाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए. एंड यही विश, यही डिजायर, यही एक्सपेक्टेशन कि आप इनमें से चीजों को फॉलो करेंगे. एंड स्टे इन टच गाइस. इट्स अ वंडरफुल टाइम. एंड हम लोग कभी ये आप बोले तो बॉम्बे में है तो वी कैन कीप मीटिंग ऑल्सो, नॉट एन इश्यू. आई एंजॉय टी एंड आई एंजॉय टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सुबह, रात, दिन, शाम, कभी भी टाइम पे मैं टी एंजॉय करता हूं. बट आइडिया इज इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक श्योर that we become the right reference point for everybody. Thank you very much guys. Have a wonderful time. God bless you. Have a great time. Menon sir, thank you very much for this wonderful opportunity to interact with our students and other friends also. And I'm sure कि आपका ये movement एक worldwide change लेके आएगा. क्योंकि यदि ये अपने बच्चे लोग टिक गए धंधे में बिना कुछ हिचकिचाहट के, बिना कुछ पता चल गया विनायक गणपति 100% तेरे को देखा, पता चल गया. ओके, तो ये बिना हिचकिचाहट हम लोग इस दुनिया को जवाब देंगे विद द राइट वे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. मेनन सर, थैंक यू वेरी मच. सर आपका कांटेक्ट डिटेल्स पूछ रहे हैं बच्चे लोग, और आप कमेंट्स देखिए सर, कमेंट्स देखिए प्लीज. कमेंट्स आते रहेंगे. कांटेक्ट डिटेल्स पूछ रहे हैं. अरे मेरा कांटेक्ट डिटेल सर क्या मेनन सर आप भी? नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं सर, प्लीज. जी जी सर, यू आर माय रेफरेंस पॉइंट. अरे नहीं सर, नहीं. पूछो, डर निकल गया. हाँ सर, डाल दिया सर ने. चलो colleagues, before you go, just couple of things. Of course you can put your questions. Since we did not record it, I like to repeat, today's session was sponsored by Sridevi, right? Because I think we had a small issue with recording, which is not fair. Right, so today's entire session was sponsored by Sridevi, right? Tools Engineers Private Limited. Samir sir came on very specific requests, very specific requests. I'm so happy all of you all enjoyed him, right? But it's not only about enjoying. You should follow him. Is a request. It's a Kalyanpur family which has sponsored this entire thing. Sorry, we didn't start recording. Right, reward employees. Right, this is Mr. Pawan. Right. Feeding around 100 families. We said that we will not let India slip. That's our promise. FMBs are the hope of India. You have to owe it to all stakeholders. Keep typing your comments for Samir sir. You are the hope for all, right? We have changed and we should change. Sir himself says that I've got so many examples that I can keep telling you all that, you know, how people have changed for the better, right? This is the most important thing that he has said. The tripod is very clear. Action point is very clear. Action point is very clear. And I repeat, read, interact and question. Read, interact and question. Keep away from negative news as far as possible, right? Moment you have negative news, try to move away.
right? Try and spread positivity among others. Learn new things, as most of you have been doing. Try and gain that lovely point. Try and stand on the shoulders of each other and start moving up. That's most important, right? That was exactly what Ratan Tata said. With this, I stop. Thank you very much, respected sir. Right, I would like to see again, sir. Look at this, all that comments that's coming in. So that's Manas Shah and Ketan sir. So the entire family is watching you, sir. The entire family is watching you on television. Right, Ketan sir himself told me. Right, booster session can't wait for action. This is Gani from California, sir. Right, he was with me in 2007. He's helping our students export. Right, he's working as a senior purchase person in California. Right, can't wait to implement. Right. So you can see all this is thanks to you, respected sir. All this, thank you very much. Right. Sir, any final message for the dear students? एक बिजनेसमैन है एंड ही अपने एम्प्लॉइज को एक 3,000 रुपीज का कोविड अलाउंस दिया, तो सब लोग हंस पड़े, उसके आजू बाजू के फ्रेंड बोले पटेल पागल हो गया, इस लास्ट नेम इज पटेल, पटेल पागल हो गया। अभी लोग बोल रहे अरे शांति रखो, मैं कोई भंडोल में कोई जगह पे पैसा दूंगा, उससे तो बेटर है कि अपने एम्प्लॉइज को दे दूं, यही मेरा सबसे बड़ा CSR है। एंड जब उसने ये पूरा चीज अपने मैनेजमेंट ग्रुप में, अपने बिजनेस सेशन में घुमाया, ये न्यूज घुमाया, यू विल बी सरप्राइज्ड माय डियर गाइस कि उसको फॉलो करते करते देयर वर अदर 10 बिजनेस पीपल जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को इस तरह का अलाउंस दिया। इंटरैक्शन से क्या होता है, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इंटरैक्शन से, ये रियल केस है। उसका इंडस्ट्री में जानता हूं, मैं उधर विजिट किया हुआ है, बड़ौदा में है, मैंने बंदे ने ब्रेक थ्रू काम किया है। पर आइडिया ये है गाइस कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समझता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ है। So only right last message, as Menon sir said, कि last words यही है guys कि please just make sure कि ये चीज को आप समझें कि आप लोग एक दूसरे की उम्मीद है, इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेसमैन के लिए उम्मीद है, एंड उम्मीद को बनाने के लिए इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। सो रीड, इंटरैक्ट एंड क्वेश्चन एंड बी वाइज, बी मोर अवेयर and spread the goodness about it, guys. Thank you very much, Menon sir. That's the only last word I would like to share. Thank you, sir. Thank you. I just typed your contact details again. I hope you're using the same email ID, sir, or बराबर है, correct है, dalalsamish@gmail.com, correct. Sir, the name of the book, right? मैं आपको भेज दूंगा, ये तो अजीम ही है, तो अजीम, तो मैं उसको I'll message to Azim. Books that sir mentioned, which I have written down, and Krishna has made notes here. एंड सेकंड मेनन सर, आई कैन सेंड यू ए मैसेज, मैं आपको भेज दूंगा कि ये बुक है और ये ऑथर का नाम है, ऐसे करके आप बांट लीजिए, नो प्रॉब्लम। पक्का सर। एक है लिंकन ऑन लीडरशिप और एक दूसरा सर ने बोला लेसन्स फ्रॉम द ईस्ट। तीसरा बुक जैसे आते हैं मैं बच्चों को दे दूंगा पक्का। लेसन्स फ्रॉम द ईस्ट में कदाच एकाध एक वर्ड इधर उधर हो गया होगा, तो मैं एग्जैक्ट नाम आपको भेज दूंगा ऑथर के साथ, पर वो तो एकदम सुपर डुपर किताब है, सुपर डुपर किताब है। Sir, and that's exactly what has made Samir sir what he is today. Very, very dear. Do you want to watch something now? All of you are just in action, right? Samir sir, बिल्कुल सर 2 जन चाहिए सर, 2 टेक्सटाइल्स में हैं, मेरे को 2 कनेक्ट दे सकेंगे सर टेक्सटाइल्स में? टेक्सटाइल में क्या चाहिए सर? रियल एस्टेट मुंबई में 2 कनेक्ट दे सकेंगे सर? 100%, आप बोलो। पर कौन सा वाला चाहिए, कौन सा टेरिटरी, ये सब बता दो, 2 मिनट में दे दूंगा आपको। That's Samir sir for you. He will just come out and then say, ठीक है यार, मेरे पास है, मैं दे दूंगा। I call him the living computer. Thank you very, very much, sir. अच्छा, आप परीक्षा कर रहे थे? बच्चों को बता रहा था आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, 2 मिनट में रेस्पॉन्स आ जाता है सर आपका, वही मैं बच्चों को, जो प्यार है और कुछ नहीं। Thank you very much. The other book is Lincoln on Leadership. I will show it next time. मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप इनको शेयर कर सकते हैं। मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा सर। ठीक है, सब लोग है उधर। Okay. Thank you very much. Right. Okay. Love you. Bye-bye. Thank you. God bless. I'll stop with this, dear colleagues. Truly inspiring, right? Thank you, Samir sir. Those who want to break for dinner, Samir sir will definitely, right? If he wants to wait, always a pleasure. Those who want to break for dinner, please. Those who have any questions for me, not Samir sir, right? I would not like to hold Samir sir back, right?
So Pratik also is saying thank you. Any Right, I questions saw that, sir. to answer, please? Right. Right, thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye-bye, bye-bye. Thank you, sir. Thanks a million is what everybody is writing. Okay. Thank you, all of you all. God bless. We meet on Friday, right, with another session, right? We will continue this series and we are working on boosting exports, right? So we'll come with that. In fact, Abhishek and all these kids are helping me, right? Prerit and others, right? We'll come back. Ritesh Vite, that is Samish sir. He is a rock star. Even when I feel low, I just call him. And he says, Kaise ho? And I said, Gap, let's start. He's the rock star. He's the rock star. Yes. Thanks, Prerit. I'll pass on this part. God bless you. This series has been fantastic. It's only due to you, all of you all, better. Due to all of you all. God bless. I hope you are learning something and implementing. Friday again will be a special session and we will get you all into some strategic and pivoting your business, strategy and pivoting your business. I'm using all my network. So there'll be people who come from industry, from SPJ. My you colleagues will come. I'll keep calling you all. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Good night, all of you all. Thank you. Thank you. Thank you, Vinayak, Shanti Bab, and everybody. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.